Hello students, welcome all of you. I am Poonam Gidwani, your EVS teacher. We have completed chapter number 15 and today we will start our 16th chapter, that is Let's Draw Maps. Students, have you ever seen a map? Do you know the meaning of a map? आपने कभी देखा है? The map of our country, the map of our state, world का नक्शा, राजस्थान का नक्शा. So, what do we need to know before drawing a map? We need to know about directions. Do you know about the directions? Do you know about left side, right side, Nazri Naksha, symbols? So we will discuss all these things in this chapter. So let's start our chapter. One day Anil went to the market with his uncle. So here we are talking about a boy and the name of the boy is Anil. What happened? One day Anil went to the market. हम भी sometimes market जाते हैं, right, for shopping. तो अनिल कहाँ गया था? Anil went to the market. बाजार गया with his uncle. And do you know the meaning of uncle? We have earlier discussed about the relations and relatives. Uncle is the brother of our father, okay, or brother of our mother. So Anil went to the market with his uncle. Anil अपने चाचा या मामा के साथ market गया. Uncle told him that we should walk on the left of the road. Now uncle उसको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? Uncle told him that we should walk on the left of the road. यानी कि whenever we are walking, तो जो रोड का लेफ्ट साइड है उस साइड हमें वॉक करना चाहिए. सो स्टूडेंट, डू यू नो मीनिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट? डू यू नो द मीनिंग कि लेफ्ट साइड कौन सी होती है, राइट साइड कौन सी होती है? सो द लेफ्ट साइड इज वेयर आवर हार्ट इज इन द बॉडी. हमारा हार्ट किस साइड होता है, हमारा दिल किस तरफ होता है? लेफ्ट साइड में होता है. सो वेयर द हार्ट इज इन द बॉडी, दैट इज द लेफ्ट साइड. ओके, नाउ अनिल आस्क्ड uncle, what is the left and what is the right? Anil does not know about the left side and right side. That's why Anil asking a question to his uncle. Please tell me what is the left side and what is the right side? What is the left and what is the right? So let's discuss about left side and right side. Most of the students in our class write and eat with the right hand. So it's true students, in your class there are so many students. So हमारी क्लास में जितने भी students होते हैं उनमें से लगभग बच्चे, we are talking about most of the students, क्या करते हैं? They write and eat with the right hand. Whenever we write, for example, I am writing here something, so I am using my right hand, okay, and whenever I eat anything, I use my right hand. So most of the students use right hand for writing and eating, okay. The second hand is the left hand. So this hand I am using for writing and I use it for eating. So इस hand के अलावा जो another hand है, means this hand, I don't use this hand for writing or for eating, okay. So this is my left hand and this is my right hand. The hand we use for eating and for writing is our right hand and this is our left hand. And left hand कौन सा होता है? जहाँ पर हमारा heart होता है हमारी body में. So हमारा heart कहाँ होता है body में? Left side पे, okay. So now uncle is explaining कि mostly बच्चे ऐसा करते हैं, but you know what happen? Sometimes बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए, ईटिंग के लिए, बट ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, देयर आर 40 to 50 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो मे बी ओनली 1 or 2 स्टूडेंट्स, ओके, एक या दो बच्चे ही ऐसे होंगे जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं या लेफ्ट हैंड से खाते हैं. सो विच हैंड डू यू यूज़ फॉर राइटिंग एंड ईटिंग? येस, टेल मी. Most of the people work with the right hand and some people write and work with the left hand. So mostly जो people हैं वो कौन सा hand use करते हैं? They use their right hand, means this hand. And
कुछ लोग ऐसे होते हैं दे यूज़ देयर लेफ्ट हैंड. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, लेफ्ट साइड कौन सी होती है? वेयर आवर हार्ट इज़ इन द बॉडी. जहाँ पर बॉडी पे हमारा हार्ट होता है वो वाली हमारी साइड कौन सी होती है? लेफ्ट साइड. और उसके अलावा जो सेकेंड साइड बच गई वो कौन सी होती है? राइट साइड. ओके, तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, दे यूज़ their right hand for writing, eating and for any work. But कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, they use their left hand for work, for writing or for eating. Now we will discuss about the identification of the left and the right hand. This is a very interesting way to know about your left hand and right hand. So let's start. Keep your left hand palm on blank paper. Do you know the meaning of palm? Yes, this is your palm, the flat inner surface of your hand, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हथेली. तो हमें क्या करना है? Keep your left hand palm on blank paper. हमें एक blank पेपर लेना है और उस पे हमारा जो लेफ्ट हैंड का पाम है, तो लेफ्ट हैंड कौन सा हुआ? दिस वन, जहाँ पर हमारा हार्ट होता है बॉडी में, जिस साइड हमारा दिल होता है उस साइड वाला हमारा लेफ्ट पाम है. ओके, उस लेफ्ट पाम को हमें ब्लैंक पेपर पे रखना है एंड ड्रॉ विद अ पेंसिल अराउंड इट. और एक पेंसिल लेके उसके आसपास ड्रॉ करना है. ओके, लाइक दिस. दिस इज माय लेफ्ट पाम and I am drawing like this. ओके, सो आपको भी इसी तरह से करना है. अपना लेफ्ट पाम लेके जो आपका लेफ्ट हथेली है उसको रखना है ब्लैंक पेपर पे और पेंसिल लेके ड्रॉ करना है. हियर यू कैन सी सम इमेजेस कि इस तरह से लेफ्ट हैंड ड्रॉ किया गया है. इन द सेम वे ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द राइट हैंड पाम. तो जिस तरह से हमने लेफ्ट हैंड के पाम को करा है, इन द सेम वे हमें राइट हैंड के पाम को करना है. ओके, दोनों हथेलियों को हमें ब्लैंक पेपर पे ड्रॉ करना है. हियर यू कैन सी सम इमेजेस. ये आपकी हेल्प के लिए है कि आपको किस तरह से करना है. ओके, आफ्टर डूइंग दिस हमें क्या करना है? नाउ आस्क द स्टूडेंट्स टू पुट देयर palms on these sketches in a way that thumb and finger cover the thumb and fingers of the sketch. अब आपको क्या करना है? आपके जो फ्रेंड्स हैं, बाकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनको बोलना है to put their palms on these sketches. तो जो हमने अभी स्केच बनाया था, आप जो स्केच बनाएंगे अपनी पाम को रखकर पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, बाकी स्टूडेंट्स को अपने हाथ उस स्केच पर रखने हैं एंड इन अ वे दैट थंब एंड फिंगर कवर द थंब. किस तरह से रखने हैं कि जहाँ पर थंब है वहाँ पर उनका थंब आएगा, जहाँ पर फिंगर्स हैं, उंगलियाँ हैं, वहाँ पर उंगलियाँ आएंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहा जाए कि यहाँ पर रखना है तो आई विल प्लेस लाइक दिस. ओके, और यहाँ पर रखना है तो आई विल प्लेस लाइक this. Okay, thus you can identify the left and the right hands of your friends. तो आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल गया कि आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है, राइट हैंड कौन सा है. अब आपको आपके फ्रेंड्स का भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पता चल जाएगा. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे to know about the left hand and right hand. So you must do this exercise. Okay? अगर आप अपनी family members के साथ ये exercise करना चाहते हैं, you can do it with your family members and ask your parents or siblings or any other family member to place their palms on these sketches in a way that thumb and finger cover the thumb and fingers of the sketch. Okay? Thus you will know about the left hand and right hand of your family members. Now let's have a look. This is Shama's house. Given below is the vicinity of Shama's house. Vicinity means जो आस-पास का area होता है, the surrounding area of a particular place. Okay? तो श्यामा का जो घर है ये उसके आसपास का एरिया है. Now observe this carefully. इसको आप ध्यान से देखिए कि श्यामा के घर के आसपास क्या क्या है. So here we can see there is a garden, there is a post office, there is a hospital, there is a bus stand, there is a school. Okay, and this is Shama's house. But we don't know about the directions, that
in which direction is a hospital, in which direction there is a post office. We don't know about the directions, right? So now you will get to know about the directions. Drawing of a line diagram of any site using some symbols is known as Najri Naksha. So students, here is the definition of Najri Naksha. Najri Naksha किसे कहते हैं हम? Drawing of a line diagram of any site using some symbols. हम जब symbols का use करके कोई line diagram बनाते हैं किसी भी site का, उसको हम किस नाम से जानते हैं? नजरी नक्शा के नाम से. So, जब हम सिंबल्स का यूज कर रहे हैं उससे हम नजरी नक्शा कैसे बनाएंगे? लेट्स सी. नजरी नक्शा मीन्स a map without scale at a glance. So what is the meaning of Najri Naksha? It's a map but without scale. Scales का use किए बिना हम एक map बना रहे हैं. At a glance. Glance means a quick look. Okay. So if you want to draw a Najri Naksha of Shyama's surroundings, फर्स्ट मेक द सिम्बल्स ऑफ ऑल प्लेसेस. सो अभी हमने क्या देखा? श्यामा के घर के आसपास का एरिया. सो अगर हम उस सराउंडिंग का नजरी नक्शा बनाना चाहते हैं, व्हाट डू वी नीड टू डू? हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट मेक द सिम्बल्स ऑफ ऑल प्लेसेस. तो जितने भी प्लेसेस हमने देखे उनके सिम्बल्स बनाने पड़ेंगे हमें, तभी हम नजरी नक्शा बना सकते हैं. ओके, सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दीज सिम्बल्स. हमने देखा था वहाँ पर क्या था? गार्डन था. ओके, तो अगर हमें गार्डन का सिम्बल चाहिए तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे. ओके, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ अ सिम्बल ऑफ बस स्टैंड, सो वी विल ड्रॉ लाइक दिस. फॉर ट्री, हियर इज द सिम्बल. For house, here is the symbol for house. For any shop, for hospital, for post office. So these are the symbols of Najri Naksha. Okay, ये क्या है? नजरी नक्शा के symbols हैं. So let's learn इनको हम use कैसे करेंगे. Symbols of some places are given above. कुछ places के symbols यहाँ दिए गए हैं. Okay, ये आपकी book में भी दिए गए हैं. Draw a नजरी नक्शा with the help of symbols. अब आपको क्या करना है? इन symbols का यूज़ करके नजरी नक्शा बनाना है. Don't worry, I'm helping you. किस तरह से हम बनाएंगे? So here is a frame. Okay, now this is Shyama's house. तो हमने क्या देखा था? जो श्यामा का घर था, यहाँ पे क्या है? गार्डन, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल एंड बस स्टैंड. Okay, so here we will put this symbol. With symbol? Garden. So garden वाला symbol हम यहाँ बनाएंगे. Okay. पोस्ट ऑफिस कहाँ पर था? Here, here और here. जहाँ पर भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ हम पोस्ट ऑफिस का सिंबल बनाएंगे. हॉस्पिटल का जो सिंबल है वहाँ पर हम हॉस्पिटल बनाएंगे. In this way we will prepare this नजरी नक्शा. Okay. With the help of symbol. कुछ नहीं करना. It's very simple. जहाँ पर भी जो प्लेसेस हैं उनकी जगह पर हम उन सिंबल्स को बना देंगे. इट्स क्वाइट इजी. सो नाउ वी विल नो अबाउट 4 डायरेक्शंस बिसाइड्स द लेफ्ट राइट. अभी हमने बात की थी ना लेफ्ट साइड की और राइट साइड की. दिस इज लेफ्ट और राइट. आई एम यूजिंग माई दिस हैंड फॉर राइटिंग. सो दिस इज माई right hand. And one more thing, my heart is in the left side. So सबका heart left side में होता है, right? So जहाँ पर हमारा heart है that is left side. Okay, so besides the left and right, back and forth knowledge of 4 direction is also necessary for making a नजरी नक्शा. तो हमें नजरी नक्शा बनाने के लिए बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए. मीन्स वी नीड टू नो अबाउट ऑल द डायरेक्शंस. एंड डू यू नो हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर? यस, देयर आर 4 डायरेक्शंस: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. सो डायरेक्शंस आर 4: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. स्टूडेंट्स, डू यू नो एन इंटरेस्टिंग थिंग? Here is a word news. हम न्यूज़ सुनते हैं ना टीवी पर या हम पेपर में पढ़ते हैं न्यूज़. So the word news is formed with the 4 first letters of these directions: C, N, E, W and S. North, East,
वेस्ट एंड साउथ। यस, ये जो वर्ड बना है न्यूज़, ये जो हमारी 4 डायरेक्शंस हैं उनका फर्स्ट जो लेटर है उन चारों के कॉम्बिनेशन से बना है। ओके, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। Isn't it interesting? Interesting चीज़ है ना? Okay, so the sun rises in the east and sets in the west. So हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सी ईस्ट, कौन सी वेस्ट, कौन सी साउथ? तो सबसे पहले हमें किससे पता चलेगा? We will know about the directions with the help of sun. Okay, so the sun rises in the east. जिस डायरेक्शन में जो सनराइज करता है, सूरज का उदय होता है, दैट डायरेक्शन इज ईस्ट डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं पूर्व दिशा। ओके, एंड सेट्स इन द वेस्ट, एंड जिस डायरेक्शन में जो सन है सेट होता है, सूर्यास्त होता है, दैट डायरेक्शन इज वेस्ट डायरेक्शन। ओके, जिसको हम बोलते हैं पश्चिम दिशा। सो the sun rises in the east direction and sun sets in the west directions. Here you can see in this image, here is a boy, this is the sun. So this is east side, this is west side, and this is north, and this is south. Okay, तो हम अगर sunrise की तरफ मुँह करके खड़े हैं, that side will be the ईस्ट साइड। ओके, और ईस्ट के जो अपोजिट होगी वो कौन सी साइड होगी? वेस्ट साइड। ओके, सो दिस इज सिंपल वे टू नो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस। ओके, सो जो मेरे सामने है कौन सी डायरेक्शन है? यहाँ पे सन राइज हो रहा है। येस, दिस इज ईस्ट। और मेरे बैक में कौन सी होगी? वेस्ट साइड, एंड आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस। आप भी इस तरह से खड़े हो जाइए। एंड नाउ दिस इज द नॉर्थ साइड। जो मेरे लेफ्ट साइड में होगी दैट विल बी द नॉर्थ, एंड हियर इज द साउथ। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल, हियर इज द सन, सो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, एंड दिस इज नॉर्थ, एंड दिस इज साउथ। तो हमारे जो लेफ्ट साइड में होगी वो कौन सी होगी? नॉर्थ डायरेक्शन होगी। और नॉर्थ के जो जस्ट ऑपोजिट होगी वो कौन सी होगी? साउथ होगी। सिंपल, हमें सिर्फ ये देखना है कि सूरज का उदय कहाँ से हो रहा है, सनराइज कहाँ से हो रहा है। ओके, सनराइज होते ही हमें ईस्ट और वेस्ट पता चल जाएंगे। आफ्टर दैट जहाँ हम खड़े हैं, जो हमारा लेफ्ट साइड है दैट विल बी नॉर्थ, एंड उसके जो ऑपोजिट है दैट विल बी south. It's so simple. Here you can see east, west, north and south. Here I am standing, अगर sun का rise यहाँ से है, this is east, this is west, this is north and this is south. If we stand up facing toward the rising sun, then our back will be in वेस्ट डायरेक्शन। अगर हम खड़े हैं, हमारा जो फेस है वो राइजिंग सन की तरफ है, जो सूर्य का उदय हो रहा है उसकी तरफ है। हियर इज अ पिक्चर। तो जो हमारी बैक होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट डायरेक्शन। एंड नॉर्थ विल बी इन द लेफ्ट हैंड साइड। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ डायरेक्शन होगी। एंड साउथ यानी कि दक्षिण दिशा कौन सी होगी? इन द राइट हैंड साइड। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सो इजंट इट इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। होल लाइफ हमें ये डायरेक्शंस का जो नॉलेज है वो काम आता है। विदाउट दिस नॉलेज हम किसी मैप के बारे में नहीं जान सकते। वी कैन नॉट नो अबाउट एनी नजरी नक्शा, एनी सिम्बल्स और एनीथिंग। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो इट्स ऑल अबाउट द 4 डायरेक्शंस, नजरी नक्शा, लेफ्ट हैंड साइड and right hand side. In next part of this video we will do some interesting exercise. Now let's meet in next video. Till then, have a good day. Thank you.